Hello students, how are you all? I welcome you in my class, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book, and the name of the chapter is Parts of Plant. Okay, in the previous chapter we have studied what are living and non-living things, and in the living things we have read that animal and plants are living things. So from the living things, plant, we are going to study in this chapter in detail. When I say parts of plant, a whole plant is made up of various different parts. Like प्लांट के अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो क्या क्या होता है बेटा उसमें? सबसे पहले जब हम सीड को सो करते हैं, जब वो जर्मिनेट होता है, स्मॉल प्लांटलेट निकलता है उसमें से, तो क्या क्या होता है उसके पास? रूट्स. यस, रूट्स होते हैं. और छोटा सा जो अबव द ग्राउंड पार्ट आता है वो क्या होता है हमारा? शूट. राइट. सो रूट, शूट. फिर जब प्लांट थोड़ा ग्रोन अप होता है, देन इट इज हैविंग stem. Yes, and after stem it has leaves, right? So there are various parts of a plant. We will learn about parts of plant which include stem, flower, root, leaf, fruits and seed. So starting from root and shoot leading to stem, which further lead to leaves, fruits and seeds, right? So this is all we will read in this chapter. So this is a small exercise. We are dependent on plants for our food, right? We eat different parts of a plant. In some plant we eat root, in some plants we eat shoot, in few we eat leaves as well. So there is a small exercise in which we have been asked to write the names of the two plants that we eat as leaves. Quick answer, as leaves what we eat? Spinach, we eat leaf, and another one is, yes, cabbage. In which we eat seed. Seed we eat in mustard and groundnut. Plants in which we eat stem. We eat stem in sugarcane and potato. In potato is a stem. Roots. We eat roots of a plant as carrot. Carrot and radish are the root. You must have seen in some picture or movie a bunny is taking out the root and he is taking out the carrot, right? So carrot is the root. Okay, moving ahead. After this small exercise comes the introduction of our chapter. In the first chapter you have learned that the plants are living thing. We have already learned that. They provide us with, because plants provide us so many things of our usage like wood, food, materials, oxygen. Very important. Can we survive without oxygen? No, we can't, right? So plants provide us wood, food material and oxygen. They are composed up of many parts, and then there are many parts of a flower or of a plant. Yes. And those parts are roots, stem, leaves, bud, flower and fruits. So parts of a flower, parts of a plant are roots, stem, leaves, bud, flower and fruits. We have to remember that. There is a picture of a plant which is showing us parts of a plant. So can we mark all these plants in this diagram?
Yes, the first part, root. Pay attention. Root grows under the ground. This is root. And then the part above the root is called stem. When the plant grows, stem again transferred into the whole shoot system, and this shoot system consists of leaves, bud. Bud is what? The early stage of a flower, when the flower is not completely booming out, that is called bud, and when the bud booms, it becomes flower. And then after flower, what appears? Appears fruit. So, and then inside the fruit we have seed, right? So, seed is the last part of a plant which will again germinate a new plant, and that's how the cycle keeps on going and going and going. Okay, so majorly we have two systems, root system and shoot system. Okay, and each part of a plant look different and has an important role in the life of plant. So now we are studying in detail each and every part of a plant. So this is the subtopic parts of a plant. First one is root. Root is the part which is under the ground. As I told you, the part which grows under the ground is called root. Shoot. It is the part of the plant that grow above the ground. Above the ground part is shoot, and that is whole shoot system which include stem, branches, leaves, buds, flowers, fruit. So all these parts makes the shoot system. What are the parts of shoot system? Stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Okay. Now reading in detail about roots. Roots can have different shape and sizes. So depending upon the different shape and sizes, roots are of two main types. And those two types are taproot and fibrous root. Now what I mean when I say taproot and fibrous root, both are roots but they are different in shape and size. First is taproot. This is called main root of a plant, which grows from the end of the stem deep into soil. So the main root which grows from the end of the stem, the above part, to deep into the soil. And then there are smaller roots grow from this root. So the main root is taproot. Like if I am making, this is a plant and this is the under the ground part. This is the main root, and then there are roots coming out like this. So the main root is called tap root, and these smaller roots coming out like beetroot, carrot, dandelions, etc. have taproot. So there are main root and then there are roots coming out of that main root. So can you see, this is the main root and this is called taproot. And then example of plants having taproots are beetroot, carrot, dandelion, etc. Okay. So this is the taproot where there is a main root and then the other roots coming out of it. After that taproot, the another part is fibrous root. So the another type of root is fibrous root. Now what is the meaning of fibrous? Fibrous means thread. Fibers का मतलब ही क्या होता है बेटा? Fibrous, जहाँ पे बहुत धागे जैसे appearance हो, ठीक है? In this type, a number of thread-like roots. कैसे root बताया मैंने? Thread-like, मतलब धागे जैसे. तो धागे जैसे roots क्या होंगे? वो soft होंगे थोड़े और थोड़े से कमजोर होंगे, right? उतने strong नहीं होंगे. So number of thread-like roots are bunched together and attached to the base of stem. Look at this picture. इस picture में हमें दिख रहा है ये छोटे छोटे धागे जैसे रूट्स हैं और ये एक साथ स्टेम से कनेक्टेड हैं.
सो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में क्या होगा हमारा, बहुत सारे रूट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे हमारे रूट्स होंगे। वो रूट्स देखो कैसे होंगे, फाइबर्स जैसे रूट है और वो यहां पे स्टेम से बाउंडेड है, राइट। इसे हम कहेंगे फाइब्रस रूट। क्लियर, फाइब्रस रूट क्या है। नाउ देर आर अगेन वी हैव टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट। जैसे टैप रूट पे हमने देखा था, beetroot, carrot, dandelions. Here we are seeing the examples of fiber root. Fibrous roots are rice, wheat, onion, etc. Okay, so rice we can see the fibrous root, wheat we can see the fibers, okay, and then also in the onion we can see these small white fibrous. Okay, so these are the fibrous root. Is that clear? Now when we have discussed the type of root, now comes the time of functions of roots. What is the time for? Functions of roots. The roots hold the plant in the soil. Plant attach क्यों होता है soil में? Because of roots. तो पहला function तो हो गया हमारा holds the plant in the soil. पहला function clear है हमें। दूसरा फंक्शन क्या होता है, अच्छा कभी हमने सोचा है कि हम प्लांट को पूरा ऊपर से पानी की जरूरत तो सबको होती है, तो हम रूट्स में क्यों डालते हैं, बिकॉज रूट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द होल प्लांट। तो हमें आगे से कभी भी जब वाटर देना है प्लांट को तो हमें लीफ में नहीं देना है, बिकॉज लीफ से प्लांट वाटर नहीं लेते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट, रूट से लेते हैं। तो दूसरा फंक्शन यही है हमारा, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। जो भी आप सॉइल में डालोगे रूट उसे एब्जॉर्ब करेगा और पूरे प्लांट तक पहुंचाएगा। दो टाइप पढ़े हमने रूट्स के, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। दो फंक्शन पढ़े हमने, टू होल्ड द प्लांट एट अ प्लेस एंड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। सॉइल में हम कुछ भी डाल रहे हैं रूट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये दो फंक्शन हो गए हमारे। अब सम रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट स्टोर फूड इन देम। जैसा हमने कहा था इन द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर, हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, कुछ प्लांट में हम रूट्स को खाते हैं। तो इसका मतलब रूट्स अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं, फूड। सो इन रूट्स लाइक कैरेट, मैंने आपको एग्जाम्पल क्या लिखवाया था बेटा इन द एक्सरसाइज, कैरेट एंड रेडिश। सो कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट दे स्टोर फूड इन देम। सो रूट्स का एक थर्ड फंक्शन है, इट ऑल्सो स्टोर फूड इनसाइड इट, ठीक है बेटा। So we have done the parts and functions of the roots. After roots coming the another part, stem. Okay, so now let's see stem. The green part of a plant seen above the ground is stem. Above the ground part is the whole shoot system, and in the shoot system the green part is called stem. Stem is the main part of the shoot and bears branches, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये वो मेन पार्ट है। मेन पार्ट क्यों है स्टेम, जैसे अंडर द ग्राउंड में रूट सिस्टम में रूट्स होती हैं, अबव द ग्राउंड में शूट सिस्टम में स्टेम होती है सबसे पहले। वही स्टेम आगे जाके क्या क्या होल्ड करती है बच्चा, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम है सॉफ्ट होती है, कुछ की स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है, कुछ की स्टेम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंड सॉफ्ट होती है जो सपोर्ट रिक्वायर्ड करती है, कुछ की स्टेम वुडी भी होती है, ठीक है। सो दैट वी विल सी। कोरिएंडर एंड स्पिनच हैव सॉफ्ट स्टेम। वी ऑल हैव सीन कोरिएंडर, धनिया जिसे कहते हैं हम, धनिया की पत्ती, एंड स्पिनच, पालक। हमने देखा उसमें जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है, राइट। मैंगो एंड कोकोनट हैव हार्ड स्टेम। और वही चीज़ अगर हम मैंगो और कोकोनट, आम या नारियल के हम स्टेम को देखेंगे तो कैसे होते हैं, काफ़ी हार्ड। कंपेयर अगर हम करें उसे स्पिनच और कोरिएंडर के स्टेम से, कितने हार्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट, बोगनविलिया एंड मनी प्लांट हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम। अगेन
मनी प्लांट वी ऑल हैव सीन राइट. उसके स्टेम कैसे होते हैं, बहुत ही थिन और वीक होते हैं. एंड वो इतने वीक होते हैं कि नॉर्मली दे कैन नॉट बी स्ट्रेट अपराइट, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है राइट. दे रिक्वायर सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब हमने अब देखा है हमेशा जब वो बड़े होते हैं मनी प्लांट, तो हम क्या करते हैं, उनको थ्रेड का सपोर्ट देते हैं या किसी और एक स्टिक का या किसी स्टैंड का सपोर्ट देते हैं. उसी सपोर्ट के थ्रू वो ग्रो होते हैं राइट. वाई? बिकॉज उनकी स्टेम क्या है बेटा, बहुत वीक है. ऑल्सो stems of potato and ginger grow below the soil and store food in it. कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं और वो अंडरग्राउंड स्टेम क्या करती है, जैसे रूट अपने पास फूड स्टोर करता था, वो भी अपने पास फूड स्टोर करती हैं. एग्जाम्पल इन पोटैटो और जिंजर, दे ग्रो बिलो द सॉइल. एंड बिलो द सॉइल को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम. इज दैट ओके? अंडरग्राउंड स्टेम यहां पे भी आपका लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया अंडरग्राउंड स्टेम. अब यहां इस पिक्चर में देखिए, कोरिएंडर स्मॉल एंड सॉफ्ट, कोकोनट वेरी हार्ड राइट. मनी प्लांट इट नीड सपोर्ट, वेरी स्मॉल एंड वीक. एंड पोटैटो इट इज शोइंग द अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, and it stores food. Also there is a thing to notice, stem is generally green when young. जब प्लांट छोटा होता है, यंग होता है, at that time stem is generally green, but later on when the plant become old or it matures, it often become woody, and at that time that woody structure is called trunk. हम कहते हैं ना जो huge trees होती हैं उनके हम स्टेम थोड़ी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ट्रंक ऑफ मैंगो ट्री, ट्रंक ऑफ बनियन ट्री राइट. सो ट्रंक इज दैट वुडी स्ट्रक्चर जो प्लांट के ओल्ड या मैच्योर होने पर आता है. So stems are valuable to us as a source of food and its wood is used for making many product. तो स्टेम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट का मेन प्रोडक्ट है, हमारे लिए फूड की तरह यूज होता है. ऑल्सो वुड प्रोवाइड करता है जिससे बहुत सारी चीजें में यूज आते हैं राइट. सोर्स ऑफ फूड यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी प्रोडक्ट्स. ओके, नेक्स्ट कम्स फंक्शन ऑफ अ स्टेम. नाउ व्हेन वी हैव लर्नड अबाउट द स्टेम, इनके फंक्शंस, एक फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दैट इट स्टोर्ड फूड. बाकी फंक्शंस भी देख लेते हैं हम. द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू दी लीव्स. अगर स्टेम नहीं होगा प्लांट अपराइट कैसे रहेगा, लीव्स को सपोर्ट कौन देगा, तो इट गिव्स सपोर्ट टू दी लीव्स. पहला फंक्शन हो गया. दूसरा फंक्शन, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द प्लांट्स रूट्स टू इट लीव्स. हमने कहा हम पानी रूट्स में डालेंगे, मिनरल्स रूट्स में डालेंगे, रूट्स उसे एब्जॉर्ब करेगा. बट क्या सिर्फ रूट्स को चाहिए, नहीं, पूरे प्लांट को चाहिए. पूरे प्लांट तक रूट्स भेजेगा किसके थ्रू, स्टेम विल कैरी द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, सो इट कैरीज वाटर एंड मिनरल. इट ऑल्सो कैरीज फूड मेड इन द लीव्स टू दी. एंड नाउ वन मोर थिंग वील रीड अबाउट लीव्स. हम जब लीव्स के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा किचन ऑफ प्लांट क्या होता है बेटा. लीव्स होते हैं तो रूट्स में पानी है, पर खाना कहाँ बनता है, लीव्स में. तो स्टेम दोनों डायरेक्शनल में काम करता है, पानी को रूट्स से लीव्स तक लेके जाता है, लीव्स में जो फूड बना है उसको लीव्स से सारे पार्ट्स तक लेके जाता है. ओके, सो इट ऑल्सो कैरीज फूड मेड इन द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट. अपार्ट फ्रॉम दैट, सम प्लांट यूज देयर स्टेम फॉर स्टोरेज. स्टोरेज के लिए, जैसे फूड की तरह हम कंज्यूम करते हैं, जैसे इन्होंने दिया शुगर केन स्टोर फूड इन देयर स्टेम. फूड की तरह हम किसे खाते हैं, शुगर केन को खाते हैं. एग्जाम्पल में आई हैव टोल्ड यू. उसके अपार्ट देखो फूड भी स्टोर करते हैं. डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम. जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट में वाटर की बहुत कमी होती है बेटा, तो क्या होते हैं वहां पे ना, जो स्टेम होते हैं बहुत ही फ्लैशी होते हैं, थिक होते हैं. वाई? बिकॉज दे स्टोर वाटर, ताकि जब वाटर की कमी हो
तो प्लांट उस वाटर को यूज कर सके। क्लियर? एंड दिस आर द पिक्चर शोन कैक्टस। कैन वी सी दिस stem of cactus is fleshy because it is storing water, and the sugar cane, it is storing food, sugar. Okay, so we are done with the stem, we are done with the roots. Now come the next part of the plant, that is leaf. Okay, one of the most important part of the plant. We have read root, we have read shoot. Why leaf become the most important plant? Let me tell you why. Because it's the kitchen of the plant. It makes the food, and if food is not there, plant won't be able to survive, right, for very long time. So a leaf grow in the stem or branch of a plant. Leaves are of different shape and sizes. लीव्स भी ऑल हमने देखे हैं बेटा, कितने कितने टाइप्स के लीव्स होते हैं। मैंगो ट्री का अलग तरीके का लीव होता है, बनियन ट्री का अलग होता है, बनाना ट्री का अलग होता है, पीपल ट्री का अलग होता है, राइट। सो लीव्स कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइज। देर आर बिग लीफ, देर आर स्मॉल लीव्स, देर आर ब्रॉड एंड लॉन्ग लीव्स, देन देर आर थिन एंड लॉन्ग लीव्स। सो देर आर वैरायटी ऑफ लीव्स। सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, if you will observe a leaf carefully, you can all do this. Okay, you can simply take a leaf and you can observe it. The flat broad part of the leaf is called leaf blade. The first part which we have read is called leaf blade. In any leaf, the flat part, the surface, is called leaf blade. Okay, this will be leaf blade, this will be leaf blade. Okay, the tip of the leaf, where the leaf is ending, the tip, like in this picture if you will see, this is the tip, this is called leaf apex, किनारा जहाँ पे लीफ खत्म होती है, हमारी एंड होती है, दैट इज कॉल्ड लीफ एपेक्स, लीफ का किनारा। जो मेन ब्रॉड सा सरफेस होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। Running through the middle of leaf is a thin tube called the main vein. Okay, and हर एक लीफ में हम देखते हैं बीच में से एक लाइन, ट्यूब जैसा, पतली सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड लीफ वेन, मेन वेन। जब भी हम ड्रॉ करते हैं बेटा, इफ आई ड्रॉ अ लीफ, आई ड्रॉ इट समहाउ लाइक दिस। ओके, सो दिस मेन पार्ट इज द main vein. This broader part is leaf blade, and this apex is called leaf apex. Okay, that is how we call it. Clear? मेन वेन वी अंडरस्टूड, एंड नाउ द ड्राइंग इज नॉट येट कंप्लीटेड। क्यों? मैंने इसमें क्या छोड़ा है अभी? हम लीफ के डायग्राम में हमेशा ऐसी बनाते हैं। अभी जो छोटी छोटी एक मेन वेन के अलावा जो बाकी जो वेन्स जैसी डायरेक्शन, ट्यूब जैसी डायरेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? साइड वेन्स। स्मॉलर ट्यूब जो मेन वेन से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? साइड वेन। यस, अंडरस्टूड। एंड इन वेन्स का क्या काम होता है? They veins carry water to all the parts of leaf. ठीक है बेटा, लीव्स हमने समझा, लीफ ब्लेड, लीफ एपेक्स, मेन वेन एंड साइड वेन्स. Veins carry water to all the part of leaf. Next, एक और इंटरेस्टिंग चीज about leaf is lower side of leaf has many tiny pores called stomata. Stomata, लीफ के अगर हम लोअर साइड पे देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हमें आंखों से नहीं दिखते हो पोर्स, बट वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम सुबह सुबह जाते हैं तो लीव्स के ऊपर एक लेयर ऑफ वाटर होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना लीफ के ऊपर, घास के ऊपर, ग्रासेस में भी होती है वाटर ड्रॉपलेट्स। कैसे आती है वो? बिकॉज उन पोर्स के थ्रू ही वाटर जो है लॉस होता है एनवायरमेंट में, और वो उस फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहता है। सेम जैसे हम कहते हैं हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, लीव्स या प्लांट क्या इनटेक करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे करेंगे? हमारे पास तो नोज है, उनके पास नोज नहीं है।
तो उनके पास वो जो स्मॉल होल्स, टाइनी पोर्स जिन्हें कहते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे? स्टोमेटा। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में किया था, राइट? Stomata. So if looking into the picture, you can see this is a leaf, and when we are using microscope, we can see that there are pores which are called stomata. और stomata के थ्रू ही बेटा एयर और वाटर का एक्सचेंज होता है. So the exchange of air and water in plants takes place through stomata. Yes. Sometime when water has to get out of the plant, stomata will be open, and when there is less water, the stomata will be closed. तो आपको दिखाया है the pores can be closed, that is called closed stomata, and the pores can be open, that is called open stomata. और यहीं से अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा पिक्चर में O2, CO2 और H2O. वाटर, O2 और CO2 तीनों चीजों का एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? हमारा स्टोमेटा के थ्रू. तो स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर. सो लीव्स देखा कितना सारा काम कर रही है. उसके बाद अब हम फंक्शंस को एक साथ इलेबोरेट कर रहे हैं, इन्यूमरेट कर रहे हैं अपने लिए. सो नाउ कम्स द फंक्शन ऑफ लीफ. A green plant makes food in its leaf by the process of photosynthesis. दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. ओके. एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन. लाइट के प्रेजेंस में लीफ फूड बनाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. लाइट के प्रेजेंस में अपने खाने को बनाना. ओके. अब इसीलिए मैंने क्या बताया था, लीव्स को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि खाना कौन बना रहा है? लीफ. अब इस प्रोसेस में क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए? जब हम घर पे खाना बनाते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, है ना? ऐसी प्लांट को भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? प्लीज ध्यान दीजिए. वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट. पहला इंग्रेडिएंट वाटर. दूसरा इंग्रेडिएंट सनलाइट. दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है बेटा? फोटो. सनलाइट ही नहीं होगी तो लाइट कहां से आएगी? राइट. एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. ये सब चीजें चाहिए होती हैं ग्रीन लीफ को खाना बनाने के लिए. वाटर, लाइट एंड गैस, ऑक्सीजन. ठीक है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिससे हम ना खाना बना रहे हैं, एक वाटर चाहिए, गैस चाहिए और सनलाइट चाहिए. ऑक्सीजन गैस वो यूज नहीं करती है खाना बनाते वक्त. ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करती है एज अ बाय प्रोडक्ट. खाना बनाते वक्त उनको जो गैस चाहिए होती है वो कौन सी होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर मैं लिखूं क्या क्या एलिमेंट चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इट वुड बी sunlight, water and CO2. क्लियर? ये चाहिए होता है लीफ को. जब खाना बनाती है लीफ, ये हमें क्या देती है बेटा? ऑक्सीजन. तो यूज कार्बन डाइऑक्साइड को करती है, रिलीज ऑक्सीजन करती है. और उसी ऑक्सीजन को सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जिंदा रहने के लिए हम ब्रीद इन करते हैं. राइट. तो अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगी तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. यस, दैट्स व्हाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नॉट कट ट्री, वी शुड ग्रो ट्री. ये पिक्चर देखिए बेटा, इसमें फोटोसिंथेसिस आपको दिखाया हुआ है. सन के प्रेजेंस से सनलाइट आ गई, एनवायरमेंट से हमने CO2 ले लिया और यहां से वाटर मिल गया. इसने क्या करा बेटा? वाटर मिनरल्स को यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 का यूज करके क्या बनाया? फूड बनाया. शुगर इज द फूड. और ये फूड क्यों बना रही है? प्लांट को सरवाइव करने के लिए तो फूड चाहिए ना. लिविंग थिंग नीड्स फूड.
और फूड के साथ साथ क्या बना रही है वो? ऑक्सीजन, जो क्यों चाहिए हमें? टू लिव। किसको जिंदा रहने के लिए चाहिए? ह्यूमंस को, एनिमल्स को, राइट? लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, ब्रोकली एक्सेट्रा स्टोर फूड। द फर्स्ट पार्ट वेयर वी डिड लीव्स, हम कौन से प्लांट के लीव्स को खाते हैं? लाइक कैबेज, ब्रोकली, राइट? सो वी ईट देम एज वेजिटेबल्स. So we are done with leaves. Now comes the next part, flower. Flower grows from some small buds on the stem. क्या बताया था? जब flowers young होते हैं, bloom नहीं हुए होते हैं, stem पे, उस time उन्हें क्या कहते हैं? Small buds. तो flower grows from small buds on the stem. Flowers make the plant look very beautiful. Flower very beautiful, right? So they makes the plant very beautiful. ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मोस्ट प्लांट के. रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या मतलब है? लिविंग थिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक थी दैट लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको एक पार्ट चाहिए होगा. तो फ्लावर के अंदर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है बेटा? प्लांट के अंदर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा फ्लावर. फ्लावर्स कम्स इन डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज. And also most of the flowers have a characteristic smell. हर किसी की अपनी एक खास स्मेल होती है ना? लाइक जैस्मिन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज, हर किसी की अपनी स्मेल होती है. सो स्पेसिफिक स्मेल. देयर आर वेरियस फ्लावर्स इन द पिक्चर. लिली फ्लावर, जैस्मिन, लोटस, डहेलिया. विच इज योर फेवरेट? माइन फेवरेट इज टुलिप, विच इज नॉट हियर, बट अमंग दिस आई लाइक लिली. So every flower has a different or specific characteristic, right? Now comes a thing which you need to remember. The largest flower in the world is Rafflesia arnoldi. It can be asked as a question कि the world में सबसे largest flower कौन सा है? Rafflesia arnoldi. Okay, this is the largest flower. After flowers comes fruit and seed. Fruit and seed. Fruits are very much important part because we eat them. And fruit comes from flower. Fruits and seed are the last part of a plant which grows in the life cycle of a plant. Flower slowly changes into fruit with seed inside it. Did you know this? Fruit comes from flower. Flower turns into fruit plus seeds. Is that okay? Fruits and seeds are of different shape. Obviously, apple doesn't look like banana. Seeds of apple and seeds of papaya, watermelon are different, right? So they comes in different shapes, size and colors. Some fruit that we eat are mango, apple, papaya, watermelons and strawberries. There are only few examples. There are various other fruits out there also. है ना? Mango, apple, papaya, watermelon, strawberries, हम ये सब खाते हैं, right? And most of the fruits store one or more seed inside them. जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है, बट वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट? एप्पल के अंदर भी काफी सारे सीड्स होते हैं, पपाया के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, राइट? सो प्लांट फ्रूट कैन हैव वन सीड और मेनी सीड. ठीक है? सो डन विद द फ्रूट एंड सीड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. लाइक आई सेड दैट सीड्स आर द लास्ट पार्ट. Because after seed, again the journey of plants start. Why? Because a seed has a baby plant inside it. A seed has a baby plant inside it. So after seed again comes the journey that a new plant comes from seed. So a seed store baby plant inside it. Seed gives rise to a small root and small shoot. That small root and shoot will eventually grow into a plant
एंड व्हेन विल दे ग्रो इनटू प्लांट? जब हम सीड की टेक केयर करेंगे, जब हम सीड को सारी रिक्वायर्ड चीजें प्रोवाइड करेंगे, राइट? ऐसे ही बच्चा प्लांट में ग्रो नहीं कर जाएगा सीड। जैसे आपको बड़ा करते वक्त आपके मदर फादर आपकी टेक केयर करते हैं, आपको सारी रिक्वायरमेंट की चीजें देते हैं, ऐसे ही सीड को ग्रो होने के लिए भी क्या चाहिए होता है हमारा? वाटर, एयर, सनलाइट। सनलाइट से क्या मिलती है उसको? वार्मथ मिलती है। एयर, वाटर, वाटर से मॉइस्चर मिलता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एंड देन अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जर्मिनेशन। क्या होता है? जब एक सीड को हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, पर वो ग्रो कब तक नहीं करेगा? जब तक उसे वाटर, एयर और सनलाइट नहीं मिलेगा। जब उसे सारी चीजें मिलेंगी उस टाइम पे क्या होगा? सीड को सब चीजें मिले, देन सीड विल स्टार्ट टू डेवलप इनटू अ स्मॉल प्लांट, क्योंकि सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। प्लीज रिमेंबर इट। एंड इन द पिक्चर बिलो, यहां देखो क्या दिखाया है नीचे पिक्चर में, कैसे सीड से प्लांट बनता है। सीड यहां पे शो किया हुआ है हमने। उस सीड को जब सनलाइट मिल रही है, मॉइस्चर मिल रही है, एयर मिल रही है, देखो सीड पहले छोटा सा रूट निकला, यहाँ पे छोटा सा शूट, फिर वो रूट नीचे ग्रो कर रहा है, फिर शूट आगे गया, देन देखो बेबी प्लांट बना। बेबी प्लांट से एक थोड़ा सा प्लांटलेट और सीडलिंग बना, एंड देन दिस सीडलिंग विल ग्रो एंड मैच्योर इनटू अ होल प्लांट। अंडरस्टूड? क्लियर है प्रोसेस? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे हम? मैं लिख भी रही हूं, प्लीज पे अटेंशन, जर्मिनेशन। germination, okay? A plant growing from its seed, okay? ये देखो। And after this what comes? So we are done with all the parts of a plant. कौन कौन से parts हमने कवर किए? हमने कवर किया root, shoot, then comes leaves, then comes flower, then comes fruit and seeds, right? So we did all the part. Now comes the time for terminologies. The first terminologies, the first part we covered was root. root में हमने क्या देखा था बेटा? tap root. main root होता था a root in which many small thin roots grow from its main root. एक main root है जिसमें से छोटे छोटे roots निकल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? tap root. next type of root was fibrous root, right? फाइब्रस रूट में क्या था? रूट इन विच अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। फाइब्रस का मतलब बताया था ना आपको, धागे जैसा जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा वीक होता है। बहुत सारे धागे जैसे रूट्स होते हैं जो स्टेम से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, राइट? आफ्टर फाइब्रस रूट वी हैव लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, लीफ पे जो ग्रीन कलर का ब्रॉड पार्ट होता है, द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, बताया था, फोटो और सिंथेसिस। इसको दोबारा से हम डिफाइन देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। कहां पे फूड प्रिपेयर होता है? इन दी लीव्स। फूड प्रिपेयर कहां होता है बेटा? लीव्स में, यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट फूड बनाता है यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आफ्टर दैट लास्ट टर्मिनोलॉजी जो हमने सबसे लास्ट में भी कवर की है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जब सीड से दोबारा से प्लांट बनता है। The process of development of a new plant from a seed is called germination. Clear? प्लांट्स के सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा दिया मैंने आपको। इस चैप्टर में हमने सब कवर कर लिया, प्लांट से कितने पार्ट हैं, उनके क्या रोल हैं, हमने टर्मिनोलॉजीज भी कर ली। एंड नाउ दिस विल बी अ टाइम टू अ रिकॉल एंड देन एक्सरसाइज। So listen, plants have two main parts. ये हमने पढ़ा, root and shoot, done.
रूट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब्स वाटर। मेन दो फंक्शन। शूट की बात करें, शूट के पास स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इस पूरे को हम कहते हैं शूट सिस्टम। द स्टेम सपोर्ट्स द लीव एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट। स्टेम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाया था बेटा, रूट्स से लीव्स तक भी लेके जाता पानी को, और खाना जो लीव्स बन रहा है उसको रूट्स तक भी लेके आता था। प्लांट को होल्ड करता है, स्ट्रेट सपोर्ट देता है। लीव्स की हम बात करें, फूड फैक्ट्री है प्लांट की। क्या है वो? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बताया था। फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोड्यूस। अगर फ्लावर्स नहीं होंगे फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा सीड नहीं होगा, और सीड नहीं होगा तो नया प्लांट भी नहीं बनेगा। यस, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द फ्लावर्स टर्न्स इनटू द फ्रूट विच सीड इनसाइड इट। वही फ्लावर क्या होता है हमारा फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फ्रूट के अंदर हमें मिलते हैं सीड, एंड देन सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जो प्रोसेस था हमारा जर्मिनेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम। अब आता है हमारा क्वेश्चन टाइम। अभी क्या करना है? हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यस, रेडी? सब तो समझ लिया, अब आंसर तो कर सकते हैं बहुत इजीली हम। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पे नहीं करते, मैं आपको भी टिक करके बताऊंगी। आप सब अपनी बुक में ओएमआर शीट पे अच्छे से सर्कल करेंगे। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आपको सर्कल करना बताया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट इज एक्स इन द गिवन फिगर। किसका डायग्राम है ये बच्चों? लीफ का डायग्राम है। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? हमें एक्स आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब जो एक्स है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमने लीफ में कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं? वाई क्या है? वाई टिप वाला पार्ट है, वाई को हम एपेक्स कहते थे। जेड क्या है? जेड ये मेन वेन है, जो वेन लेके जाती है वाटर को, राइट। एक्स क्या है? एक्स ये ब्रॉड, देखो बेटा ये एक्स क्या है हमारा? एक्स ये साइड वेन है। दोबारा से मैं अपनी ड्राइंग को हटा दे रही हूं ताकि आप लोग क्लियरली लीफ की पिक्चर देख सकें। अब देखिए एक्स पार्ट क्या है हमारा? एक्स है बच्चा हमारा साइड वेन। देख रहे हो आप, ये साइड वाली वेन पे टिकड है क्योंकि जेड जो है हमारा वो सेंट्रल वेन पे टिक है। तो एक्स इज दी साइड वेन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट। ओके, नेक्स्ट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम दैट गिव्स अ स्वीट जूस। प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं। इसमें से वो प्लांट कौन सा है जो स्टेम में है और जिसके स्टेम से हम क्या कंज्यूम करते हैं? स्वीट जूस। ये क्या है? स्पिनच। स्पिनच में क्या स्टेम होता है? स्पिनच में तो हम उसके लीफ को खा रहे होते हैं, राइट। क्या पोटैटो से हमें स्वीट जूस मिलता है? क्या जिंजर से हमें स्वीट जूस मिलता है? स्वीट जूस देता है क्या जिंजर? नेक्स्ट है शुगर केन। यस, वेरी क्लियरली शुगर केन, गन्ने। गन्ने का जूस हम सब पीते हैं, वेरी स्वीट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होते हैं हमारे? फाइब्रस रूट वो होते हैं जिनमें स्मॉल रूट्स, धागे जैसे बहुत सारे रूट अटैच होते हैं। इफ गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल, टैप रूट में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल किए थे? रेडिश किया था, कैरेट किया था और डैंडलियंस किए थे, राइट। बट ये सब किस में थे? हमारे टैप रूट में थे ना। हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बताना है? क्वेश्चन इज fibrous root. So this is wrong, this is wrong, this is wrong because all these are example of tap roots. हमारा करेक्ट आंसर क्या है बेटा? बिकॉज इसमें क्या होते हैं? फाइब्रस रूट। आपको छोटा सा रूट यहां दिख भी रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोवाइड अ कवरिंग फॉर सीड। सीड की कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है? लीव्स। क्या सीड की कवरिंग लीव्स देते हैं? नो। क्या सीड की कवरिंग बड देते हैं? नो। क्या सीड की कवरिंग रूट देते हैं? नहीं। सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। तो सीड की कवरिंग कौन दे रहे हैं हमें? फ्रूट्स, राइट। सो फ्रूट्स इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट पार्ट इज fill in the blanks. A taproot has dash main root. A taproot has one main root. So what will come? One main root.
द वीट प्लांट हैज डैश रूट. वीट प्लांट में कैसे रूट्स होते हैं? वीट प्लांट हैज फाइब्रस रूट. थर्ड इज डैश स्टोर वाटर इन दी स्टेम. अपने स्टेम में वाटर स्टोर करने का काम किसका था? वी हैव सीन एन एग्जाम्पल, डेजर्ट कैक्टस. सो वी विल राइट desert cactus. Desert cactus store water in the stems. Fourth is dash are called the food factory of plant. सबसे important part क्या था जिसे food factory कहे थे? Leaves. What are called? Leaves are called the food factory of plant. Next, the tip of the leaf is called. लीफ की टिप को क्या कहते थे हम? लीफ एपेक्स. तो दिस इज द फिफ्थ वन, लीफ एपेक्स. ओके, डन विद इट. फिल इन द ब्लैंक्स. मूविंग अहेड, ट्रू एंड फॉल्स पार्ट. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. जो ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट, उसके लिए हमें टी लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए हमें एफ लिखना है. लीव्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट. रिप्रोडक्टिव पार्ट मोस्ट प्लांट का लीव्स होते हैं क्या? नहीं बेटा. क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट? फ्लावर्स होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. आई एम राइटिंग हियर फॉर योर. सो दिस इज फॉल्स. यू कैन राइट इन द बॉक्सेस एज वेल. Next question is it visible to all of you? So the next question is asked to us, water vapors enters the leaves through. Next question asked is, water vapor enter the leaves through. किससे enter करते हैं? water और air किसके थ्रू enter करते हैं? गैसेस का exchange स्टोमेटा के थ्रू. यहाँ पे स्टोमेटा ही दिया है. so this is true. So this is true. Okay. Next question. We breathe in carbon dioxide to stay alive. हम कार्बन डाइऑक्साइड, वी बोला है मतलब हम. क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं जिंदा रहने के लिए? नो. हम क्या ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन. सो दिस इज फॉल्स. हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ब्रीथ करते हैं बेटा. Fourth one, the two types of roots are tap root and beet root. दो टाइप के रूट्स तो होते हैं, बट क्या वो टैप रूट और बीट रूट होते हैं? नहीं. ये भी फॉल्स, बिकॉज वो क्या होते हैं? टैप रूट और फाइब्रस रूट. तो ये भी क्या है हमारा? फॉल्स है. द लास्ट ट्रू एंड फॉल्स. द फ्लावर्स टर्न्स इनटू अ फ्रूट विद सीड इनसाइड इट. फ्लावर फ्रूट में टर्न होता है जिसके अंदर सीड होता है? यस. फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो किसमें टर्न होता है? हमारे फ्रूट में, जिसके अंदर सीड्स होते हैं. तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है. दिस इज ट्रू. सो नाउ आफ्टर डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस and reading the whole chapter in detail, I hope you all are aware about the parts of plant. All parts of plant, not only just the plants के parts, but also you know the functions. सबको functions अच्छे से clear है? root का function, shoot का function, leaf का function, flower का function, fruit का function, seed का function, कैसे new plant होता है, germinate होता है, root system, shoot system, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, ये सारे टर्म्स हमने आज करे काफ़ी अच्छे से. आई होप आप सबको अब प्लांट के सारे पार्ट्स के बारे में, उनके यूसेज के बारे में बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ गई है. थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन. थैंक यू ऑल.